فرسٹ آف آل تو میں آپ کے FM کی ٹیم اور آپ کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے ہمارے بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے ایک بڑا خوبصورت پروگرام جو ہے وہ مرتب کیا، اور آپ کی جو ہیں وہ پروفیشنل اور تخلیقی جو صلاحیتیں ہیں اس سے جو ہیں وہ بچے جو ہیں مستفید ہوئے اور ان کی حوصلہ افزائی بھی ہوئی۔ السلام علیکم، میں ہوں آصف اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں آواز FM 105 کی لائیو ٹرانسمیشن۔ ہم بنیں گے آفیسر کا خواب لیے ہوئے یہ ٹاپرز بچے آفیسر کیڈٹ کالج جنگ کے ہونہار طلبہ و طالبات ہیں۔ انہوں نے فیصل آباد بورڈ میں نمایاں پوزیشنز حاصل کی ہیں۔ کتنے مارکس لیے ان سے جانیں گے اور ان کا فیوچر میں کیا پلان ہے، یہ سب کچھ جاننے کے لیے آج یہ گیٹ ٹوگیدر ہوئے ہیں۔ آئیے ان سے جانتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا گڈ نیم ہے؟ امبر رفیق۔ کتنے مارکس لیے آپ نے؟ 481 آؤٹ آف 520۔ فیوچر میں کیا بننا چاہیں گے؟ لیکچرر ان میتھ۔ گڈ، وٹ از یور گڈ نیم؟ عائشہ ارشاد۔ بیٹا کتنے مارکس لیے آپ نے؟ الحمدللہ 505۔ 505، ماشاء اللہ۔ فیوچر میں کیا پلان ہے؟ انشاءاللہ ول بی ڈاکٹر۔ زبردست، گڈ۔ وٹ از یور گڈ نیم؟ آمنہ سہیل۔ مارکس کتنے لیے؟ 504۔ اور کیا بننا چاہیں گے فیوچر میں؟ آرمی ڈاکٹر۔ آرمی ڈاکٹر، زبردست۔ کیا گڈ نیم ہے بیٹا؟ مبین شاہد۔ مبین۔ اور کتنے مارکس لیے؟ 504۔ کیا بننا چاہیں گے آپ؟ ڈاکٹر۔ ڈاکٹر۔ پلیز وٹ از یور گڈ نیم؟ وزیر فاطمہ۔ فیوچر میں کیا بننا چاہیں گے؟ آرمی آفیسر انشاءاللہ۔ آرمی آفیسر، گڈ۔ وٹ از یور گڈ نیم؟ نایاب زہرا۔ نایاب زہرا، کتنے مارکس لیے آپ نے؟ الحمدللہ 505 میں سے 503 مارکس۔ اور فیوچر میں کیا بننا چاہیں گے؟ انشاءاللہ آئی ایم انٹرسٹڈ ان جوڈیشری، دیٹس وائی آئی وانٹ ٹو بیکم اے جج۔ زبردست۔ ان سے جانتے ہیں ہم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وٹ از یور گڈ نیم؟ زویریہ سجاد۔ بیٹا کتنے مارکس لیے آپ نے؟ 505 میں سے 503۔ اور فیوچر میں کیا بننا چاہیں گے آپ؟ انشاءاللہ آرمی ڈاکٹر۔ آرمی ڈاکٹر، انشاءاللہ۔ گڈ نیم؟ عائشہ شاہد۔ عائشہ شاہد، کتنے مارکس لیے؟ 501۔ اور کیا بننا چاہیں گے آپ؟ انشاءاللہ CSS آفیسر۔ CS آفیسر، گڈ۔ مریم بخاری۔ کتنے مارکس لیے؟ 492 آؤٹ آف 495۔ گڈ۔ بیٹا کتنے مارکس لیے آپ نے؟ 501۔ اور فیوچر میں کیا بننا چاہیں گے؟ انشاءاللہ آرمی ڈاکٹر۔ آرمی ڈاکٹر۔ ان کی ٹیچر بھی ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں، اور چونکہ ساری محنت تو انہوں نے ہی کرائی ہے، اور اس پوزیشن پہ جو یہ بچے آئے ہیں اور ٹاپ پوزیشنز انہوں نے فیصل آباد بورڈ میں حاصل کی ہیں، تو ان سے یہ کامیابی کا فارمولہ جاننا چاہیں گے۔ میم یہ بتائیے گا کہ آپ کے پاس وہ کون سا جادو ہے جس سے یہ بچوں نے ٹاپ پوزیشنز حاصل کی؟ جی السلام علیکم۔ جی سر، ہماری کامیابی کا راز ہمارے بچوں کی اور ہمارے اساتذہ کی محنت ہے، اور اسی محنت کی وجہ سے ان کے آج یہ اتنے خوبصورت رزلٹ ہیں، جس کی وجہ سے انشاءاللہ بچے کل بھی اسی کو مینٹین کریں گے۔ کیا میسج دینا چاہیں گی آپ کمیونٹی کو؟ جی بالکل سر، جیسے انہوں نے محنت کی ہے، جتنے ہم محنت کریں گے اس کا پھل ضرور ملے گا ہمیں، اور محنت میں کبھی بھی آپ کہیں کہ محنت کبھی رائے گا نہیں جاتی ہے۔ آپ کی محنت دن رات کی، بچوں کی محنت تھی، اساتذہ کی محنت تھی، اسی کو انہیں کنٹینیو کرنا چاہیے، اور باقی لوگ بھی اگر اسی فارمولے پہ چلیں گے، اپنا وقت جو ہے اپنی پڑھائی کو دے رہے ہیں، تو انشاءاللہ کامیاب ہوں گے اچھے مارکس کے ساتھ۔ تھینک یو ویری مچ۔ یہاں پہ جینٹس کا گروپ بھی ہے، بوائز گروپ ہمارے ساتھ ہے، اور انہوں نے بھی بہت اچھے مارکس لیے ہیں۔ اب ہم چاہیں گے کہ جینٹس سے پوچھتے ہیں انہوں نے کتنے مارکس لیے اور فیوچر میں کیا بننا چاہیں گے، لیکن ان کے ٹیچرز یہاں پہ کھڑے ہیں، یہ ٹاپ اینڈ سینئر فیکلٹی ہے، ان سے جاننا چاہیں گے کہ یہ آپ کے بچوں نے جو ٹاپ پوزیشنز لیں، تو سر آپ کا ٹیچنگ میتھڈ کیا تھا؟ ہمارا ٹیچنگ میتھڈ ایسا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اس طرح سے تیاری کروا سکیں کہ ہمارے بچے فیصل آباد بورڈ میں یا دنیا میں کہیں بھی جائیں تو وہ ٹاپ پہ ہوں۔ اس کے لیے ہم ان کے سلیبس سے ہٹ کے بھی ان کو محنت کرواتے ہیں۔ نمبر 1 تھنگ از دیٹ کہ کیریئر کاؤنسلنگ، ہم ایک بچے کو بتاتے ہیں کہ کیریئر کاؤنسلنگ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ آگے اس کے پاس کیا سکوپ ہے، وہ کہاں کہاں کیا کیا کام کر سکتا ہے، اور اس کو کس پرسنٹیج پہ آئے گا کہ وہ آگے ایڈمیشن لے سکے۔
मतलब मेडिकल में जाना चाहता है, इंजीनियरिंग में जाना चाहता है, तो उसको एक टारगेट दिया जाता है कि इस टारगेट पे बेटा आप आओगे तो तब आप आगे बढ़ सकते हो, आगे पहुंच सकते हो। इसके अलावा जो हमारा पैटर्न है, पैटर्न इस तरह से है कि बच्चे को नाउ हाउ ज़रूरी है कि मैं किस तरह से पेपर अटेम्प्ट करूंगा तो मैं अपना बेस्ट दे सकता हूँ। ये बच्चे को जब पता होगा तो तब वो जाके इस काबिल होगा कि वो दूसरों को कम्पीट कर सके। और अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे मोस्टली स्टूडेंट्स A+ ग्रेड में हैं। और मैं इस बात पे सबको कहूँगा, सबको अप्रिशिएट करता हूँ, तमाम टीचर्स को अप्रिशिएट करता हूँ। मेरे साथ अदर साहब मौजूद हैं, असद साहब मौजूद हैं, और जो ये हमारे जितने स्टूडेंट्स हैं, ये एक एक हीरा है, कीमती है ये हमारे लिए। और मैंने कहूँगा कि अपने लिए क्लैपिंग करें सब लोग। गुड। अदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे मैं जानना चाहूँगा कि सर क्या आउट ऑफ सिलेबस इनको कुछ एक्स्ट्रा भी आप पढ़ाते हैं या वही रूटीन लिटरेचर? जी, सबसे पहले तो निसाबी सरगर्मियों के अलावा इनको गैर निसाबी सरगर्मियों में बड़ा भरपूर तरीके से इनका मतलब ना कहा जाता है कि आप उसमें पार्टिसिपेट करें। मैं यहाँ पे ना ये बताना चाहता हूँ कि जो सबसे बेहतरीन बच्चों में बहसीयत टीचर यहाँ का स्टाफ या यहाँ का जो फैकल्टी है वो करती है, बच्चों के अंदर तख्लीक की सलाहियत पैदा करती है और वो उनसे इल्म के साथ मोहब्बत सिखाती है, इल्म को तख्लीक के लिहाज से जानने के लिए उनकी आगाही और से वाकफियत करवाती है। और मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो जीत है, जो हमारी फ़तह है, उसमें सबसे ज़्यादा काम जो है वो हमारे असातिज़ा कराम का है कि वो इल्म से मोहब्बत कराना सिखाते हैं। मैं यहाँ पे एक कोटेशन ज़रूर कोट करना चाहूँगा। वो जावेद अहमद साहब पाकिस्तान का नामवर अदीब भी हैं, फ़िलासफ़र भी हैं। वो कहते हैं कि एक उस्ताद वो होता है कि वो जानता है कि एक नया जिस्म कैसे जन्म लेता है, और बिल्कुल एक टीचर जानता है कि एक नया वजूद कैसे जन्म लेता है, और हम वो नया वजूद पैदा करके रहते हैं। उनके अंदर वो सलाहियतें, उनके अंदर वो क्रिएटिविटी, उनके अंदर वो मोहब्बतें, और उनको मोहब्बत से पढ़ना और लिखना और वो सारी चीज़ें सिखाते हैं, ताकि जब बच्चा यहाँ से जाए और जहाँ भी जाए वो मोहब्बत करना सिखाए, मोहब्बत के बारे में आगाही करे, और मोहब्बत के असूल के मुताबिक जहाँ तक जा सके वो तालीम का इस स्कूल से, इस इदारे से, और ये इदारा हमारा मादर इल्मी है और इससे हमने वो कुछ सीखा है। मैं समझता हूँ कि अगर हम कहीं और होते तो ऐसा कहीं भी ना सीख सकते। इस मादर इल्मी ने हमें यहाँ पे खड़ा होना सिखाया और वही तालीम हम इन बच्चों को भी दे रहे हैं। यही वजह है कि बच्चे जहाँ तक जाते हैं, रिसालपुर तक जाते हैं तो फर्स्ट पोजीशन लेके जाते हैं। यहाँ पे अगर मुग़ल साहब हैं, उनकी एक बच्ची मोजना, वो रिसालपुर तकरीर करने गई और उसके पीछे इनकी बड़ी मेहनतें हैं, उसके एक साजा की बड़ी मेहनत है, उसके पीछे एक चीज़ बहुत करती है कि वो अल्लाह ताला से मैंने दुआ की कि या रब्बुल आलमीन मुझे तो क़ुव्वत तख़य्युल अता फरमा। उसने क़ुव्वत तख़य्युल अता फरमाया और मैंने वो लफ्ज़ लिखे और वो बच्ची वहाँ पे फर्स्ट पोजीशन आई और वो हेलीकॉप्टर पे बैठी और उसकी सैर की। और ये सारी चीज़ें उनके अंदर वजदान के अंदर मोहब्बत पैदा करती हैं, उनको इस वतन के ज़र्रे ज़र्रे से मोहब्बत करना सिखाते हैं, इस मादर इल्मी के ज़र्रे ज़र्रे से मोहब्बत करना सिखाते हैं, मुनाफ़क़त नहीं सिखाते, रट्टा नहीं सिखाते, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, उनका तसव्वुरात, उनकी रूहानी और रोमानवी हर लिहाज से। इंसानी ज़िंदगी के ना दो दरख्शां पहलू हैं, एक रूहानी और एक रोमानवी। हम इन दोनों के वो दोनों पूरे करते हैं, रूहानी भी और रोमानवी भी, ताकि ये बच्चा जब बड़ा हो के कहीं भी जाए तो इसकी मुकम्मल यानी कि इसकी वो पूरी जो ग्रोथ है नशोनुमा हो सके, ताकि ये दर दर के न भटके और कामयाब। आई अप्रिशिएट यू सर। यहाँ तशरीफ फरमाएं। सर ये बताइएगा कि ऑफिसर कैडेट कॉलेज जंग की कामयाबियों के राज उनमें से एक बता दीजिएगा। जी, यहाँ पर जो है ना स्टूडेंट्स को ज़्यादातर कॉन्सेप्ट पे तवज्जो दी जाती है ताकि स्टूडेंट जो है ना लाइफ में मार ना खा सके। अगर किसी को कोई क्वेश्चन, कोई डेफिनेशन भूल गई है तो उसे ऐसे कॉन्सेप्ट दिए जाते हैं कि वो लाइफ में कभी मार नहीं खाता, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्टूडेंट्स ने इतने मार्क्स अचीव किए और हम अल्हम्दुलिल्लाह प्राउड फील करते हैं कि ऐसे स्टूडेंट्स हमें मिले। ठीक, थैंक यू वेरी मच। जैसा कि मैंने सामीन कहा था, क्योंकि यहाँ पे बॉयज़ ग्रुप भी है और माशाल्लाह बहुत बड़ी तादाद में हैं टॉपर्स जिन्होंने फैसलाबाद बोर्ड में नुमाया पोजीशन हासिल की हैं, तो इनसे ज़रूर जानेंगे कि कितने मार्क्स लिए और फ्यूचर में क्या बनना चाहेंगे। जी बेटा, कितने मार्क्स लिए आपने? 501 आउट ऑफ 505। ज़बरदस्त। क्या फ्यूचर में बनना चाहेंगे? इंशाल्लाह डॉक्टर। डॉक्टर, वेरी गुड। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। व्हाट इज़ योर गुड नेम? उबैदुर रहमान। उबैदुर रहमान, कितने मार्क्स लिए? अल्हम्दुलिल्लाह 505 आउट ऑफ 505। ज़बरदस्त। फ्यूचर में क्या बनना चाहेंगे? इंशाल्लाह डॉक्टर बनूंगा। डॉक्टर बनना चाहेंगे, वेल डन। गुड नेम प्लीज़? मोहम्मद अली। मोहम्मद अली। मोहम्मद अली एक इंटरनेशनल बॉक्सर भी रहे हैं, वर्ल्ड चैम्पियन है, तो फ्यूचर में आप भी बॉक्सर बनना चाहेंगे या डॉक्टर इंजीनियर? इंजीनियर इंशाल्लाह। ज़बरदस्त। तो कितने मार्क्स लिए आपने? 501 आउट ऑफ 505। वेल डन। यहाँ पे भी एक होनहार स्टूडेंट हैं, इनसे जानना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड नेम प्लीज़? अदनान अफजल। अदनान अफजल, कितने मार्क्स लिए आपने? 491 आउट ऑफ 495।
ज़बरदस्त। फ्यूचर में क्या बनना चाहेंगे? इंजीनियर। इंजीनियर। गुड नेम प्लीज। हमजा शहजाद। कितने मार्क्स लिए आपने? अल्हम्दुलिल्लाह 501 आउट ऑफ 505। ज़बरदस्त। फ्यूचर में क्या प्लान है? इंशाल्लाह आर्मी में ट्राई करेंगे। ज़बरदस्त। ट्रेनिंग ऑफिसर बनना है आपने, ये एम लेके आएंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक कामयाब भी करेगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गुड नेम प्लीज। गुलजेब सफदर। गुलजेब सफदर। गुलजेब सफदर ने कितने मार्क्स लिए ये आप हमें बताएंगे? 505 में से 485। गुड। फ्यूचर में क्या बनना चाहेंगे? इंशाल्लाह डॉक्टर। इंशाल्लाह डॉक्टर। गुड। अस्सलाम वालेकुम। कितने मार्क्स लिए आपने? 493 आउट ऑफ 505। गुड। फ्यूचर में क्या बनना चाहेंगे? फार्माकोलॉजिस्ट इंशाल्लाह। ज़बरदस्त। क्या नाम है बेटा आपका? मोहम्मद रबी। मोहम्मद रबी। मोहम्मद रबी कितने मार्क्स लिए? 494 आउट ऑफ 505। ज़बरदस्त। और क्या फ्यूचर में बनना चाहेंगे? इंशाल्लाह आई वांट टू बिकम अ सीएसएस ऑफिसर। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। जी बेटा आपका क्या नेम है? सर मेरा नाम फ़खर नसीर है। फ़खर नसीर। फ्यूचर में क्या बनना चाहेंगे? सर इंशाल्लाह सॉफ्टवेयर इंजीनियर ज़रूर बनेंगे। सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर आप बनना चाहेंगे। गुड हो गया। हमारी दुआएं भी आपके साथ हैं। जी आवाज़ 105 की टीम यहाँ पे ऑफिसर कैडेट कॉलेज झंग कैंपस में मौजूद है और फैसलाबाद बोर्ड में जिन बच्चों ने नुमाया पोजीशन हासिल की उनसे हमने उनके मार्क्स भी जाने और वो फ्यूचर में क्या बनना चाहेंगे उनसे ये भी हमने जाना। और ये देख के भी हमें बहुत खुशी हुई है कि यहाँ पे इतनी बड़ी तादाद में टॉपर्स बच्चे हैं और ये ऑफिसर कैडेट कॉलेज झंग की मेहनत का मुंह बोलता सबूत है कि उन्होंने इतनी बड़ी तादाद में बच्चों की मेहनत कराई और वो फ्यूचर में कुछ बनना भी चाहेंगे और फैसलाबाद बोर्ड में नुमाया पोजीशन हासिल कर रहे हैं। इस समय जैसा कि आपने ऑफिसर कैडेट कॉलेज झंग के होनहार तलबात जिन्होंने फैसलाबाद बोर्ड में नुमाया पोजीशन हासिल की उनके व्यूज उनसे जाने और उन्होंने कितने मार्क्स लिए वो भी आपको डिटेल आप तक पहुँच चुकी है। अभी हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं मोहतरम सर नवीद साहब जो कि CEO हैं ऑफिसर कैडेट कॉलेज झंग के। उनसे हम मज़ीद ये जानेंगे कि फर्दर इनका प्लान क्या है और कॉलेज की इम्प्रूवमेंट के लिए ये फर्दर क्या करना है। जी वालेकुम अस्सलाम। फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपके FM की टीम और आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने हमारे बच्चों की हौसला अफजाई के लिए एक बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम जो है वो मुरतब किया और आपकी जो हैं वो प्रोफेशनल और तख्लीकी जो सलाहियतें हैं उससे जो हैं वो बच्चे जो हैं मुस्तफ़ीद हुए और उनकी हौसला अफजाई भी हुई। तो अल्हम्दुलिल्लाह हर साल ऑफिसर ग्रुप ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस और ऑफिसर कैडेट कॉलेज जो हैं बोर्ड के रिज़ल्ट्स में पूरे ज़िला झंग में नुमाया रिज़ल्ट्स जो हैं वो नताइज जो हैं वो देता रहा है और इसी तरह इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पूरा ज़िला झंग में 9th क्लास 10th क्लास फर्स्ट ईयर क्लास सेकेंड ईयर क्लास में बॉयज़ एंड गर्ल्स ने आला और जो हैं एक काबिल फ़ख्र नताइज जो हैं वो जंग में दिए हैं जिस पे डेफिनेटली तलबा तालबात को भी वालिदैन को भी और तमाम टीचर्स को भी फ़ख्र है। और इसके साथ साथ जो हैं तमाम लोग जो हैं अल्लाह का जो हैं वो शुक्र भी अदा कर रहे हैं कि जिसने अल्लाह ताला ने हमारे बच्चों की हमारे तलबा तालबात की और हमारे टीचर्स की मेहनत का जो है वो एक अच्छा नेमल बदल दिया। जी इम्प्रूवमेंट डेफिनेटली बीइंग ए टीचर तो हमें हर वक्त सिर्फ जो इम्प्रूवमेंट है वो अपने स्टूडेंट की ही चाहिए। और कुछ साल पहले मेरे टीचर सर अब्दुल हक साहब जो कि इस्लामिया स्कूल में मैं उनका स्टूडेंट रहा हूँ वो हमारे स्कूल में आए और मैंने उन्हें कहा कि बच्चों की इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ आप हमें मशवरा दें। तो उन्हीं की लाइन ही मैं अपने स्टूडेंट्स और अपने पेरेंट्स को कोट करना चाह रहा हूँ। तो उन्होंने ये कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि हमारे तलबा और तालबात को बख्त लग जाए, जैसे कि हमारे यहाँ दादा दादी अम्मा नानी अम्मा यही दुआ देते हैं कि अल्लाह तन बख्त लावे। तो उन्होंने ये कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि हमारे स्टूडेंट्स को बख्त लगे। अब उन्होंने कहा ये बख्त कैसे लगेंगे, इसके लिए उन्होंने कुछ 4 एडवाइसेस की, जिसमें एक उन्होंने ये एडवाइस की कि आप जब भी मांगें और जो भी मांगे सिर्फ अल्लाह की ज़ात से मांगें। सेकेंडली उन्होंने ये कहा कि मेरे बच्चों आपकी नमाज जो है वो क़ज़ा नहीं होनी चाहिए।
5 वक्त की नमाज अदा करें। थर्डली उन्होंने ये कहा कि अपने माँ बाप और अपने असातिज़ा का कहा मानें। और फोर्थली उन्होंने ये कहा कि रोज़ का काम रोज़ करें। तो आप देखेंगे कि इंशाल्लाह आपको वक्त लग जाएंगे। तो मेरी भी ये ख्वाहिश है कि मेरे तमाम तलबा तालबात को वक्त लगें। तो उस लेवल को हासिल करने के लिए मेरी ये रिक्वेस्ट है कि तमाम तलबा तालबात इन 4 पॉइंट्स को रोज़ाना की बुनियाद पे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं और इसको फॉलो करें। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक जो है ज़िंदगियों में बरकत देगा और आने वाली ज़िंदगियों में जो कामयाबियाँ हैं और मनाजिल हैं वो आपको खुद आके मिलेंगी। थैंक यू वेरी मच। ये थे हमारे साथ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कैडेट कॉलेज जंग जनाब मोहतरम नवीद इकबाल साहब। इन्हीं अल्फाज के साथ बात को इजाज़त दीजिए। अल्लाह